السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، فرانس سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے پر بحث۔ وزیر اعظم نے وزیر خارجہ کو مسلم ممالک سے رابطوں کا ٹاسک دے دیا۔ ایم کیو ایم کی توجہ دلانے پر وزیر داخلہ کو لاپتہ کارکنوں کے معاملے اور لاپتہ کارکن شاہد کریم کی ہلاکت کی انکوائری کا حکم۔ مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں پی ٹی ایم کا سربراہی اجلاس، اسمبلیوں سے استعفوں، نئے سال کے آغاز پر لانگ مارچ اور جیل بھرو تحریک کی تجاویز پر مشاورت۔ نون لیگ لاہور جلسے میں حکومت کو فائنل الٹیمیٹم دینے کے لیے پرعزم۔ پی ٹی آئی حکومت نے ملک کو تنہا کر دیا، لاقانونیت، بھوک اور غربت بڑھ رہی ہے۔ سعد رفیق کا نون لیگی جلسے سے خطاب، ووٹ چوری کر کے حکومت بنانے کا الزام۔ کہا، وزیر اعظم کے آمرانہ رویے سے اسمبلیاں افادیت کھو چکی ہیں۔ ملک میں 5 ماہ بعد سب سے زیادہ اموات ایک ہی روز، مزید 89 افراد جان سے چلے گئے۔ 2885 نئے کیسز سامنے آ گئے، مثبت کیسز کی شرح 8.58 ہو گئی۔ 20.8 کی شرح کے ساتھ کراچی سب سے آگے۔ معاون خصوصی فیصل سلطان نے وبا کی دوسری لہر کو انتہائی شدید قرار دے دیا ہے۔ پشاور میں مہلک وبا سے لڑتے ہوئے ایک اور لیڈی ڈاکٹر نے جان دے دی۔ سندھ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال بھی جاں بحق۔ حیدرآباد کا سول اسپتال کورونا مریضوں سے بھر گیا۔ لاہور میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر 15 دکانیں اور 14 ریسٹورانٹ سیل۔ پشاور میں 6 بس اڈے سربا مہر، 10 ٹرانسپورٹرز گرفتار کر لیے گئے۔ کورونا وبا کے خلاف عالمی جنگ میں کامیابی کا تاریخی دن، لاکھوں افراد کی اموات کے بعد زندگیاں بچانے کا برطانیہ سے آغاز۔ امریکی اور جرمن دواساز کمپنی کی تیار کردہ ویکسین کا استعمال شروع ہو گیا۔ شمالی آئرلینڈ میں 90 سالہ خاتون ویکسین لینے والی پہلی عام خاتون بن گئیں۔ 62ویں یوم گوادر پر پاک بحریہ کے زیر اہتمام تقریب، ماہی گیروں نے بھی بوٹ ریلی نکالی۔ فضائیں پاکستان زندہ باد کناروں سے گونج اٹھیں۔ نیوی کے ہیلی کاپٹرز اور ہوور کرافٹ نے مشقیں بھی دکھائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر تمام شخصیات کو انفالو کر دیا۔ ٹویٹر پر وزیر اعظم عمران خان خاصے فعال ہیں اور اپوزیشن سے متعلق بیانات سمیت ملک کی ترقی پر ٹویٹ کرتے رہتے ہیں۔ 10 سال پہلے بنائے گئے ٹویٹر اکاؤنٹس میں وزیر اعظم کے 12.9 ملین فالوورز ہیں۔ معروف صنعت کار سراج قاسم تیلی دبئی میں انتقال کر گئے۔ تاجر رہنما نمونیا کے مرض میں مبتلا تھے۔ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف سمیت اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کا اظہار تعزیت۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مفتی ظفر علی خان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ نماز جنازہ اریبہ احسن العلوم پارک میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ مفتی ظفر علی خان گزشتہ شب کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ مفتی ظفر علی خان کئی دن سے علیل تھے اور نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ کورونا آئسولیشن ختم ہونے کے بعد پاکستانی اسکواڈ کرائسٹ چرچ سے کوئنز ٹاؤن پہنچ گیا۔ کل سے پریکٹس شروع ہوگی۔ T20 سیریز کا آغاز 18 دسمبر سے ہوگا۔ اور غیرت کے نام پر قتل، ماڈل قندیل بلوچ کی زندگی کی کہانی کے چرچے۔ شرمین عبید چنائی کی فلم الائیو 2 شارٹ امریکہ کے سب سے بڑے دستاویزی فلم فیسٹیول میں پیش کر دی گئی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اس خبر کے ساتھ۔ حکومت نے فرانس کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کے معاملے پر مسلم امت سے مشاورت کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس میں 17 نکاتی ایجنڈے سمیت کورونا وائرس کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ کابینہ اجلاس میں فرانس سے تعلقات منقطع کرنے سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست بھی زیر بحث آئی۔ وزیر اعظم نے فرانس کے تعلقات ختم کرنے کے معاملے پر مسلم امت سے مشاورت کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو اسلامی ممالک سے رابطوں کا ٹاسک سونپ دیا، جو OIC ممالک سے رابطوں کے بعد کابینہ کو آگاہ کریں گے۔ کابینہ اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کابینہ کمیٹیوں سے متعلق فیصلے پر بحث ہوئی۔ وزیر اعظم نے کمیٹیوں سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے پر لیگل ٹیم کو لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ PDM کا آج اسلام آباد میں ہونے والا اجلاس اہمیت اختیار کر گیا۔ نون لیگ نے اپنی سفارشات کو حتمی شکل دے دی۔ نواز زرداری رابطوں میں قومی اسمبلی کی حد تک استعفوں پر دونوں جماعتوں میں اتفاق رائے ہو گیا۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत के खिलाफ अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के राब्तों में अहम पेशरफ्त हुई, जिसमें नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की हद तक इस्तीफों पर राजी कर लिया। इस्तीफों के हवाले से दोनों जमातों में मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक राय हो गया है, जबकि दोनों बड़ी जमातों की जानिब से मरहलावार इस्तीफों का ऑप्शन मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल करने पर भी इत्तेफाक राय किया गया। ज़राए के मुताबिक नून लीग की तजवीज़ है कि लाहौर जलसे में लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया जाए। लाहौर जलसे में हुकूमत को अल्टीमेटम दिया जाए। 13 दिसंबर के जलसे में वजीर आजम इमरान खान के इस्तीफे की डेडलाइन मुकर्रर की जाए। लॉन्ग मार्च के बाद ही असम्बलियों से मरहलावार इस्तीफे दिए जाएं। ज़राए के दावे के मुताबिक नून लीग अपनी ये तजावीज़ PDM के इजलास में रखेगी। हतमी फैसला मुश्तरका इजलास में होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज पर निछावर किए गए नोटों की हकीकत सामने आ गई। सियासी रहनुमाओं ने मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बना दिया। गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज ने लाहौर रैली से मुतालिक समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि लाहौर में लोग सिर्फ फूल ही नहीं पैसे भी फेंकते हैं। इत्तलात के मुताबिक मरियम नवाज पर निछावर किए गए नोट जाली निकले। शादबाग से शादरा जाते हुए मरियम नवाज पर जाली नोट निछावर किए गए और बाज़ अफराद इन नोटों को असली नोट समझकर लूटते रहे। लीगी रुकने कौमी असम्बली मलिक रियाज के घर की छत से 50 रुपए के जाली नोट फेंके गए। लीगी नायब सदर मरियम नवाज पर निछावर किए गए जाली नोटों पर वफाकी वजीर मवासलात ने भी ट्वीट किया और तंज करते हुए कहा कि मरियम के फ़ॉन्ट जाली, नुमाइंदों के नोट जाली, अब्बा जी की रिपोर्ट जाली, चचा के सबूत जाली, उनकी सारी सियासत का रूट जाली। दूसरी जानब लाहौर में मरियम नवाज पर जाली नोट निछावर किए जाने पर मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। शहबाज गिल ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले ऊँट जाली, कतरी शहजादे जाली, ट्रस्ट डीड जाली। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने मुल्जिमान के वकला को नैब के गवाहों पर हर्ज के लिए दोबारा तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने अदालत में एक बार फिर अपनी खिदमत गिनवा दी। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत की। जेल हुकाम ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर को पेश किया। दौरान समाअत अदालत ने मुल्जिमान के वकील के पेश न होने पर रिमार्क्स दिए कि ऐसे तो ये केस कभी नहीं चलेगा, जर्राह के लिए आखिरी मौका दे रहे हैं। जज जवादुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को पेश होने के लिए दिया गया वक्त खत्म हो गया है, लिहाजा अदालत नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देती है। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि अदालती हुक्म के बावजूद तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की गई, जिस पर अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर ने अपने बयान में कहा कि वो 7 बार मेंबर कौमी असम्बली रहे, ताहम तनख्वाह या TADA नहीं वसूल नहीं किया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि PDM के जलसों से किराए के तर्जुमान घबरा गए हैं। कमरा अदालत में शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और सलमान शहबाज ने टेलीफोन पर गुफ्तगू की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, जबकि शहबाज शरीफ ने केसेस के मुतालिक भी नवाज शरीफ को आगाह किया। 5 जुलाई के बाद सबसे ज्यादा अमवात। कोरोना की दूसरी लहर में पहली बार एक रोज में 89 अमवात रिपोर्ट। सिंध और पंजाब में कोरोना 41 अफराद की जानें निकल गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के आदाद शुमार के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 89 अमवात हुई। एक्टिव केसेस की तादाद 44,241 तक पहुंच गई। कातिल वायरस पंजाब और सिंध में 41,000 जानें निकल गया। खैबर पख्तूनख्वा में 6 और आजाद कश्मीर में 1 शख्स जान की बाजी हार गया। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। मजमूई अमवात 8,497 हो गई। अस्पताल में 3,048 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 336 वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज 33,610 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2,885 पॉजिटिव रिपोर्ट्स हुए। मुतासरीन की मजमूई तादाद 4,23,179 हो गई। सिंध 1,86,212, पंजाब 1,24,191, खैबर पख्तूनख्वा 50,078, इस्लामाबाद में 33,061 और बलूचिस्तान में 17,501 मुतासिर हो चुके हैं। कराची में कोरोना वायरस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 डॉक्टर्स की जान ले ली। मारूफ ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर हारिस और आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अहमद निजी अस्पताल में जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से एक लेडी डॉक्टर शहीद हो गईं। ENT सर्जन डॉक्टर हारिस का ताल्लुक सिंध गवर्नमेंट अस्पताल से था। निजी अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक चंद रोज से उनका इलाज जारी था, ताहम तबीयत बिगड़ने पर इन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया।
सिंध में मोहलिक वबा से जिंदगी की बाजी हारने वाले दूसरे मौलिज डॉक्टर अहमद माहिर अमराज चश्म थे। वो निजी अस्पताल में क्लिनिक चलाते थे। प्रोफेशनल डॉक्टर एसोसिएशन की मुताबिक डॉक्टर आलिया सरफराज इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में जेर इलाज थी, ताहम वो कोरोना से लड़ते हुए जान की बाजी हार गईं। रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2020 में कराची में पहला कोरोना केस मंजर आम पर आने के बाद से अब तक सिंध भर में 41 डॉक्टर मोहलिक वबा के बाइस जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। महकमा सेहत सिंध की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर जारी रिपोर्ट के मुताबिक सूबे भर में अब तक 3039 हेल्थ वर्कर्स कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें 2176 डॉक्टर, 482 पैरा मेडिकल स्टाफ और 381 नर्सेज शामिल हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में सफ़े अव्वल का किरदार अदा करने वाले 104 हेल्थ वर्कर्स अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। कोरोना वायरस से इंतकाल करने वालों में 74 डॉक्टर, 27 पैरामेडिक्स और 2 नर्सें भी शामिल हैं। विफाक की जानिब से कराची के मंसूबों के लिए 739 अरब रुपए फराहम करने की तजवीज़ दे दी गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास कल तलब कर लिया है, जिसमें 7 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वफाकी हुकूमत फंड्स PSDP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत फराहम करेगी। ताहम NDMA को मकामी बेघर अफराद की बहाली की जिम्मेदारी सौंपने की तजवीज़ दी गई है। विफाक की जानिब से कराची के नदी नालों की सफाई के लिए फंड्स फराहम करने की तजवीज़ पेश की गई है। कराची सर्कुलर रेलवे के लिए ग्रीन लाइन बस मंसूबे की तकमील के लिए और KPT से पिपरी तक डबल रेलवे लाइन के लिए फंड्स फराहम करने की तजवीज़ भी शामिल की गई है। याद रहे कि ECC ने गुज़िश्ता इजलास में कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मंजूरी मौक्कर कर दी थी। इसके अलावा इजलास में सब्सिडीज को मौकूल करने के हवाले से समरी पेश की जाए। गैर मुल्की कर्जों की रीलेंडिंग पॉलिसी 2016 पर नजरसानी का मामला एजेंडे में शामिल किए गए हैं, जबकि WHO को वाजिबात की अदायगी के लिए ज़मनी ग्रांट की समरी पेश की जाएगी और इस्लामाबाद इंतजामिया के मंसूबों के लिए ज़मनी ग्रांट की फराहमी पर गौर किया जाएगा। ग्रीन लाइन मंसूबे में ताख़ीर का खदशा पैदा हो गया है। सबसे कम कीमत बसें फराहम करने वाली कंपनी को कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ गया। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए कम कीमत बसें फराहम करने वाली कंपनी मुश्किल का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से ये मंसूबा बर वक्त पूरा ना होने का खदशा पैदा हो गया है। ज़राए का कहना है कि ग्रीन लाइन को बसें फराहम करने का टेंडर जोंगटोंग नामी कंपनी ने हासिल किया था, ताहम इस कंपनी को BRT पेशावर को बसें फराहम करने वाली कंपनी गोल्डन ड्रैगन ने चैलेंज कर रखा है। गोल्डन ड्रैगन का दावा है कि जोंगटोंग ने ओरिजिनल की बजाय फोटोकॉपी गारंटी जमा करवाई थी। ज़राए का कहना है कि इस सिलसिले में गोल्डन ड्रैगन नामी कंपनी की जानिब से दरख्वास्त ग्रीवेंसेस रीड्रेसल कमेटी शिकायत की अजाला कमेटी ने मुस्तरद कर दी है, लेकिन तहरीरी फैसला आना अभी बाकी है, जिसके बाद ही बसों का ऑर्डर जारी होगा। ज़राए के मुताबिक तहरीरी फैसले के 5 माह बाद बसें आ सकेंगी। ताहम अगर गोल्डन ड्रैगन ने अदालत से रुजू कर लिया तो ये मंसूबा एक बार फिर ताखीर का शिकार हो सकता है। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जून 2021 तक ग्रीन लाइन बहाल करने का ऐलान किया गया था, जबकि 12 जून 2020 को बसें खरीदने की इजाज़त जारी की गई थी। ग्रीन लाइन का पूरा मंसूबा 24 अरब रुपए की लागत से तैयार होना है। मंसूबे के तहत पहले मरहले में कराची के इलाके सरजानी से नुमाइश तक 200 से 250 अफराद की गुंजाइश वाली 80 बसें चलेंगी। शहर में भत्ताखोरी के वाक़यात एक बार फिर सर उठा रहे हैं और कारोबारी शख्सियात को भत्ता देने की धमकियां दी जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। पुलिस के मुताबिक न्यू टाउन थाने की हदूद में मुबैना तौर पर बिल्डर को 50 लाख रुपए भत्ते की पर्ची मिली, जिसके बाद वाक़े का मुकदमा मुतासरा बिल्डर मोहम्मद इमरान खान की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। मुतासरा बिल्डर इमरान ने पुलिस को बताया कि जमालुद्दीन अगवानी रोड पर अपने दफ्तर में पार्टनर अशरफ और मुलाजिम मोहम्मद इमरान के साथ मौजूद था कि इस दौरान 2 मुलजिमान पिस्तौल और ग्रेनेड हाथ में थामे दफ्तर में घुस गए। बिल्डर इमरान ने बताया कि मुलजिमान ने पहले असले के जोर पर लूट मार की और मोबाइल फोन और नकद रकम छीन ली, जिसके बाद एक पर्ची दी जिस पर बैरून मुल्क का फोन नंबर और उस्ताद अहमद अली मगजी लिखा हुआ था। मुलजिमान ने कहा कि इस नंबर से फोन आएगा और 50 लाख रुपए भत्ते का बंदोबस्त कर लो, जबकि मुलजिमान ने जाते हुए TT पिस्तौल का बट सर पर मारकर मुझे जख्मी कर दिया। उन्होंने कहा कि 10 मिनट बाद पर्ची पर लिखे हुए नंबर से व्हाट्सएप पर फोन आया और फोन करने वाले ने अपना नाम अहमद अली मगजी बताया और 50 लाख रुपए भत्ता मांगा, जबकि भत्ताखोर ने धमकी दी कि ये अभी ट्रेलर है, 50 लाख का बंदोबस्त नहीं हुआ तो बाद में बच्चों से वसूल कर लेंगे। पाकिस्तान के मारूफ ताजिर और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर सिराज कासिम तेली दुबई में इंतकाल कर गए। वज़ीर आला सिंध ने मरहूम के खानदान और ताजिर बरादरी से दुख का इजहार भी किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में।
मई 1953 को कराची में पैदा होने वाले सिराज कासिम तेली ने मुल्की मईशत और 17 पब्लिक सर्विस में हमेशा बढ़ चढ़कर किरदार अदा किया और उनकी खिदमात के एतराफ़ में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। पाकिस्तान के मारूफ ताजिर और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर सिराज कासिम तेली दुबई में इंतकाल कर गए। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप सिराज कासिम तेली में नमूनिया की तशखीस हुई थी और वो चंद दिन से दुबई के अस्पताल में दाखिल थे। सिराज कासिम तेली गुज़िश्ता 2 रोज से वेंटिलेटर पर थे। सिराज कासिम तेली कराची चैम्बर के साबिक सदर थे। MD बदर एक्सपो सॉल्यूशन ज़ुहैर नसीर ने मारूफ ताजिर सिराज कासिम तेली के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि मरहूम सिराज कासिम तेली एक अच्छे इंसान और बेहतरीन दोस्त थे। उन्होंने मजीद कहा कि मरहूम के खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर फरातुर रहमान ने भी सिराज कासिम तेली की वफात पर गहरे रंज का इजहार किया है। चीफ ऑर्गेनाइजर DCFA और कन्वेनर डेल्फा एक्सपो हारिस अली मिठानी का सिराज कासिम तेली के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहना था, कासिम साहब की वफात से मुझे और इनसे जुड़े बाकी लोगों को गहरा सदमा पहुंचा है। वो एक बहादुर बिजनेसमैन थे। उन्होंने हमेशा सच्चाई और बहादुरी के साथ बिजनेस कम्युनिटी को लीड किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी सिराज कासिम तेली के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की। कराची चैम्बर ने सिराज कासिम तेली के इंतकाल पर अपनी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। कराची चैम्बर के सदर शारिक वोरा ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में मोदी की फस्ताई। भारतीय हुकूमत ने जम्मू और ज़िला इस्लामाबाद के इलाके फुलगांव में मुसलमानों के मकानात मिस्मार करने के बाद अब ज़िला बडगाम में कश्मीरी मुसलमानों को बेदखली के नोटिस जारी कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुकामी लोगों ने सहाफ़ियों को बताया कि काबिज़ हुक्काम ने ज़िला के इलाकों में इनके मकानात को मस्मार करना और सेब के बागात को काटना शुरू कर दिया है। 108 साल उम्र रसीदा खातून समेत इलाके के लोगों का कहना है कि वो कई नस्लों से वहाँ रह रहे हैं और अगर मोदी हुकूमत इनको कत्ल भी कर दे तब भी वो इन इलाकों से नहीं जाएंगे। याद रहे कि हिंदुत्व नजरिए के हामिल RSS की हिमायत याफ्ता भारतीय हुकूमत इसराइली मंसूबे पर अमल करते हुए जबरदस्ती खाली की गई जगहों पर भारतीय फौजी अफसरान, एहलकारों और हिंदुओं को आबाद करके मकबूजा जम्मू और कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील कर रही है। दर असना कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी मौलवी बशीर अहमद ने श्रीनगर में एक बयान में आदमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो मकबूजा इलाके में जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी का नोटिस लें। सीनियर हुर्रियत रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने एक तकरीब से खिताब करते हुए जनूबी एशिया क़याम अमन और खुशहाली के लिए तनाज़े कश्मीर के हल की जरूरत पर जोर दिया है। भारतीय पुलिस ने नई दिल्ली में 3 कश्मीरी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। जिले कलगाम में एक कश्मीरी लड़का पुरअसरार तौर पर मुर्दा हालत में पाया गया है। बरतानिया में कोरोना वबा के खात्मे का नुक्ता आगाज़ कर दिया गया, जिसके तहत कोरोना वैक्सीन की फराहमी आज से शुरू कर दी गई। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन सबसे पहले उम्र रसीदा अफराद और तिब्बी शोबे से वाबस्ता मुलाजमीन को दी जाएगी। रवा माह बरतानवी हुकूमत की जानिब से कोरोना वैक्सीन के वसी पैमाने पर इस्तेमाल की मंजूरी दी गई और कहा गया कि मुल्क भर में अगले हफ्ते से कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल का आगाज किया जाएगा। ब्रिटिश रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन कोरोना से 95% तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। वाज़ेह रहे कि बरतानिया में कोरोना से आज 189 अमवात हुई हैं, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 61,434 हो गई है। बरतानिया में कोरोना से मुतासर मरीजों की तादाद 17,38,000 है। बरतानिया में कोरोना वबा के खात्मे का नुक्ता आगाज कर दिया गया है, जिसके तहत कोरोना वैक्सीन की फराहमी आज से की जाएगी। अमरीकी फ़ज़ाइया के लेजेंड पायलट और दुनिया में पहला साउंड बैरियर तोड़ने वाले जनरल चक येगर 97 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। चक येगर के इंतकाल की खबर पर दुनिया भर में इनके चाहने वाले स्टूडेंट्स और साथी अफसरदा हो गए हैं और उनके अकाउंट पर ताज़ियत के पैगामात का सिलसिला शुरू हो गया। लेजेंड पायलट चक येगर ने 14 अक्टूबर साल 1947 में पहला साउंड बैरियर तोड़ा था, जिसे एविएशन की तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफों में लिखा जाएगा। चक येगर को अमरीकी फ़ज़ाइया की तारीख में बेहतरीन पायलट का दर्जा भी हासिल था। एविएशन तजुर्बाकारों के मुताबिक लफ्ज़ लेजेंड को बिला वजह इस्तेमाल किया जाता है, ताहम ये लफ्ज़ चक येगर पर पूरा उतरता है। लेजेंड पायलट के कैरियर और जिंदगी पर मुतादिद हॉलीवुड फिल्में भी बनी। अमरीकी फ़ज़ाइया की अकेडमी में आज भी लोग चक येगर को अपना हीरो और उन जैसा बनना चाहते हैं। चक येगर ने अपने एविएशन कैरियर की इब्तिदाई दूसरी आलमी जंग में बहैसियत मैकेनिक से की, ताहम अपनी काबिलियत, मेहनत और काम से वो ट्रेनी पायलट और फिर फ्लाइट ऑफिसर बने। दूसरी आलमी जंग में चक येगर ने P-15 मस्टैनिंग तैयारा उड़ाया और जंग के दौरान मगरिबी मुहाज पर दुश्मन के 11 तैयारे तबाह किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक चक येगर के साउंड बैरियर का रिकॉर्ड आज तक नाकाबिले शिकस्त है। दूसरी आलमी जंग में जर्मनी और इसके हामियों की शिकस्त के बाद का अदवार वी-डे के बाद येगर ने बहैसियत टेस्ट पायलट मुख्तलिफ तैयारे उड़ाए। दूसरी जंग अजीम के बाद वो कैलिफोर्निया के मोरक आर्मी एयरफील्ड, जिसे आजकल एडवर्ड एयर बेस कहा जाता है, तैनात रहे, जहां उन्होंने अब तक का नाकाबिले शिकस्त साउंड बैरियर का रिकॉर्ड कायम किया है।
یہ ریکارڈ انہوں نے بیلکس 1 طیارے میں پرواز کے دوران قائم کیا۔ ان کے اس کارنامے پر انہیں ایئر فورس کی تاریخ کا سب سے قابل تحسین میکے ٹرافی ایوارڈ دی موسٹ میریٹوریس فلائٹ آف دی ایئر دیا گیا۔ سال 1962 میں انہیں فل کرنل کے عہدے پر فائز کیا گیا اور ایئر فورس ایئر اور ریسرچ پائلٹ اسکول کا بطور پہلا کمانڈنٹ تعینات کیا گیا۔ چک یگر کو اس کے علاوہ دیگر اہم عہدوں پر بھی تعینات کیا گیا۔ وہ فلپائن میں امریکہ ویتنام جنگ میں ٹیکنیکل فائٹر ونگ کے 405ویں سربراہ بھی مقرر ہوئے۔ اس دوران انہوں نے کئی سو گھنٹوں کی پروازوں کا ریکارڈ بھی قائم کیا اور 127 سے زائد مشنز کیے۔ امریکی فضائیہ کو اپنی زندگی کے 33 قیمتی سال دینے کے بعد سر چک یگر سال 1975 میں بریگیڈیئر کے عہدے پر ریٹائر ہوئے، تاہم اس کے باوجود وہ امریکی ایئر فورس اور ناسا کے لیے بطور مشیر بھی کام کرتے رہے۔ چک یگر کو امریکی فضائیہ کی تاریخ میں سب سے ڈیکوریٹڈ پائلٹ کا اعزاز بھی حاصل ہے، جنہوں نے انگنت ایوارڈ، ٹرافی، میڈلز، تمغے اور اعزازی اعزاز اپنے نام کیے۔ اسپین سے پاکستان کا سفر بذریعہ سڑک کرنے والا سیاح کا سرگودا پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا۔ اسپینش سیاح کے سفر کی داستان سنتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہی اسپینش سیاح فرانسسکو رورا زیویئر، جو کہ اپنے پاکستانی دوست قیام احمد شیخ کے ہمراہ روڈ سے سفر کرتے ہوئے پاکستان پہنچے۔ دونوں دوست 17 نومبر کو اسپین سے روانہ ہوئے اور یورپ کے مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے ترکی پہنچے، جہاں سے ایران اور پھر تفتان بارڈر سے پاکستان میں داخل ہوئے۔ پاکستان پہنچنے پر پاک فوج کی طرف سے فرانسسکو رورا زیویئر کو شاندار سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ سرگودا پہنچنے پر زیویئر کا شاندار استقبال کیا گیا اور ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ وہیں زیویئر پاکستانی کھانوں کے بھی شوقین نکلے۔ زیویئر 1 ماہ تک پاکستان میں ٹھہریں گے اور مختلف علاقوں کا سفر کریں گے۔ زیویئر نے پاکستان کو ایک شاندار ملک قرار دیا۔ فرانسسکو رورا زیویئر کے بذریعہ سڑک پاکستان سفر کرنے سے یہ حقیقت عیاں ہو گئی ہے کہ ملک میں سیکیورٹی مسائل پر قابو پا لیا گیا ہے۔ کراچی میں 13ویں عالمی اردو کانفرنس ہوئی، جس میں دنیا بھر سے ادیبوں نے ادب کے مختلف اصناف اور پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ کورونا کی وجہ سے اس بار کانفرنس میں شرکاء نے زیادہ تر آن لائن شرکت کی۔ اردو کانفرنس دنیا بھر میں لائیو دیکھی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گزشتہ 13 برس سے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی جانب سے عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد ہو رہا ہے، جس کا ادب سے چار رکھنے والے شدت سے انتظار کرتے ہیں، مگر کورونا کی وجہ سے حکومت کی طرف سے بڑے اجتماعات پر پابندی کے بعد ستارہ امتیاز پانے والے سید احمد شاہ نے اس سال آن لائن کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا اور ادب کے ذوق رکھنے والے اور شہر سے باہر کے ادیبوں نے بھی آن لائن شرکت کی۔ کانفرنس کا آغاز 3 دسمبر سے ہوا، جس کا افتتاح صوبائی وزیر سیاحت و ثقافت سید سردار شاہ نے کیا۔ سردار شاہ کا کہنا تھا کہ تمام مادری زبانوں کو قومی زبان کا درجہ دینا چاہیے۔ سردار شاہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا، میں آرٹس کونسل کی پوری گورننگ باڈی کو، اس کی پوری ٹیم کو اور شاہ صاحب امن شاہ صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ان وبا کے دنوں میں مکمل SOP کے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ اور ماسک کے ساتھ 13ویں عالمی اردو کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی خوشائن بات یہ ہے کہ اردو پاکستان کو جوڑنے والی زبان ہے۔ اردو جو ہے وہ چاروں صوبوں کو کنیکٹ کرتی ہے۔ آج اردو نے یہ کریڈٹ لیا ہے اور یہ آرٹس کونسل کی سب سے بڑی میں کامیابی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے چاروں قومیتوں کو کنیکٹ کیا ہے اور چاروں قومیتیں، چاروں زبانیں اور مختلف زبانیں جو صوبوں میں جو لوگ بستے ہیں ان کی زبانوں کو بھی شامل کر کے پاکستان کی ایک نمائندہ وفاقی ثقافتی کانفرنس کا بھی ایک لک دیا ہے اور اس کا انعقاد کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ محبت کو بڑھانے کے لیے اور نفرت کی سیاست کو کم کرنے کے لیے اور نفرتوں کو کم کرنے اور خلیجوں کو دور کرنے کے لیے یہ بہت ایک خوشائن قدم ہے اور یہ کنٹینیو رہنا چاہیے۔ اور ثقافت ڈپارٹمنٹ اور گورنمنٹ سندھ ہمیشہ آرٹس کونسل کو سپورٹ کرتی رہی ہے ان کے ہر مثبت پروگرام میں اور آئندے بھی ان کو سپورٹ کرتی رہی ہے۔ افتتاحی تقریب میں بھارت کے ادیب گوپی چند نارنگ نے بتایا کہ ان کی جائے پیدائش پاکستان کے بڑے صوبے بلوچستان سے ہے۔ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آن لائن شریک ہوئے۔ افتتاحی تقریب میں چاروں صوبوں کے ادیبوں نے بھی اظہار خیال کیا، جس میں زہرا نگاہ، کشور ناہید، افتخار عارف، پیرزادہ قاسم، حسینہ موئن، شاہ محمد مری، زاہد ہنا، نور الہدی شاہ اور یوسف خشک شامل ہیں۔ ٹی وی اور ڈرامہ رائٹر نور الہدی شاہ نے کہا کہ ایسی تقریبات سے نفرت اور شدت پسندانہ سوچ میں کمی ہوتی ہے۔ کبھی ہم میں زبان اور کبھی ہم میں مذہب کے نام پر نفرتیں پیدا کی گئی۔ حقوق حق تلفی کی وبا، جس میں سب سے زیادہ شدت نفرت کی وبا میں رہی ہے، ہم سب کو جس نے گھیرا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکا ہے، یہاں تک کہ اسی وبا کی شدت میں بیمار ہو کر ہم نے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر دیا۔
इफ्तिताही तकरीब के बाद सदर आर्ट्स काउंसिल सितारा इम्तियाज सैयद अहमद शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा, ये 13वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में अभी इब्तदाई पर गोपी चंद नारंग, शमीम अनफी साहब थे और उसके अलावा लाहौर से, इस्लामाबाद से यास्मीन और इफ्तिखार आरिफ साहब भी मौजूद थे। तो उसके अलावा फिर यहाँ पर ज़रा निगाह और सारे लोग थे और सरदार शाह साहब जो हमारे कल्चर के ऐसे वज़ीर हैं कि जिनको सकाफ़त जो है सारी दुनिया की सकाफ़त से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान की सकाफ़तों से और उर्दू ज़बान से, ये हमारे आज के चीफ़ गेस्ट हैं। और मैं समझता हूँ कि ऐसे नामसाइद हालात में जहाँ लोगों ने हमें मशवरा दिया कि इसको ना करें, हमने की और जितनी कामयाबी से इसका आगाज़ हुआ है और अब इसको ज़्यादा देखा जा रहा है पूरे ग्लोब पे डिजिटली, आर्ट्स काउंसिल के फेसबुक पेज पे और आर्ट्स काउंसिल की यूट्यूब पे और ट्विटर पे लोग देख रहे हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारा पाकिस्तानी मीडिया, चैनल, अखबार और बाकी जो FM हैं और जिस तरह आपके टेलीविज़न के ज़रिए इसको सारी दुनिया में पहुंचाया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि एक ऐसा मुश्किल काम तो था, लेकिन सरदार शाह साहब ने भी हिम्मत बधाई, मुकम्मल सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया, मोरली भी सपोर्ट किया और कहा कि बिल्कुल करनी चाहिए। तो मैं वज़ीर सकाफ़त और सकाफ़त के महकमे का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे हालात में जब आपको यकीन नहीं होता कि गुमगू की सूरत हाल है, इसमें बहुत मेरा इन्होंने हौसला बढ़ाया। इसके बाद आसिफ फरगी की याद में एक सेशन हुआ। कॉन्फ्रेंस के तीनों दिन मुख्तलिफ किताबों की रोनुमाई भी की गई। पहले दिन का इख्तिताम नौजवानों के मुशायरे से हुआ। इस साल उर्दू के अलावा इलाकाई अदब के 100 साल की खिदमत पर भी सेशन शामिल थे, जिसमें बलोची, सराइकी, पश्तो, पंजाबी और सिंधी भी शामिल थे। इवेंट के तीसरे दिन का आगाज उर्दू अफसाने के 100 साल सेशन से किया गया। उर्दू गजल के 100 साल याद रफ्तगां, पश्तो अदब के 100 साल जिसकी निजामत डॉक्टर फौजिया खान ने की। पंजाबी अदब के सेशन की निजामत आसमा शहराजी ने की, जिसमें तौकीर चुगताई, बुशरा नाज, सुखरा सदफ ने शिरकत की। शुरा ने कहा कि पंजाबी जबान का अलमिया ये है कि जबान को मजहब से जोड़ा गया। गुरु नानक की वजह से भारतीय पंजाब में गुरमुखी कहलाने लगी और बाबा फरीद के मानने वालों को पंजाबी मिली। सब शुरा को पंजाबी ना पढ़ाने पर अफसोस था। उन्होंने सिंध को खुशकिस्मत जाना जो कि लिखी पढ़ी और बोली जा सकती है। पंजाब पानियां च दित्ती जहर मिला ते उन्हां पानियां धरती नूं दित्ता जहर पिला। ऐस जरखे जमीन दे लूलू फुटिया जहर, गिट गिट चढ़ियां लालियां ते फिट फिट चढ़िया खैर। अज धरती दे लहू वसिया, कबरां पईयां चों, प्रीत दियां शहजादियां अज विच मज़ारां रोण। अज सब्बे कैदू बन गए हुस्न इश्क दे चोर। अज कित्थों लियाईए लब के वारिस शाह एक होर। इसके बाद किताबों की रोनुमाई की गई, जिसमें किश्वर नाहिद की किताब दरिया की तशनगी पर अनीस हारून नूरुल हुदा शाह ने गुफ्तगू की, जिसकी निजामत अब्बास नकवी ने की। इसके बाद कुलियात जोश जो के 2500 सिफात पर मुश्तमिल है, जिसको हिलाल नकवी ने तरतीब दिया, जिसकी निजामत जावेद हसन ने की। इस सेशन के दौरान फातिमा हसन ने हिलाल नकवी के लिए हुकूमत से तमगा देने की दरख्वास्त की। इसके बाद सीनियर सहाफी मजहर अब्बास की किताब और फिर यूं हुआ की रोनुमाई की गई, जिस पर सुहेल वड़ाइच ने इजहार ख्याल किया। इसकी निजामत अंजुम रिजवी ने की। अब बज़ाहिर अगर ये कॉलम ना होता तो ये एक फ्रंट पेज बैनर हेड ये स्टोरी होती जो इन्होंने बयान की है, लेकिन इन्होंने बड़े मज़े लेके उसको टोन डाउन करके ऐसे बयान किया कि अपना सारा सच भी बयान कर दिया और उसके अंदर हसासियत भी निकाल ली और चुनाचे वो छप गया। अगर शायद वो न्यूज़ स्टोरी की शक्ल में होता तो वो छप ही ना सकता, जितनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसके अंदर थी। तो मज़हर अब्बास साहब की जो खूबी है बतौर कॉलमिस्ट कि एक तो इनका तजर्बा, दूसरा उस तजर्बे से इन्होंने क्या सीखा, अपने अंदर एक तहम्मुल, ये कभी भी आखिरी हद तक नहीं जाते, आखिरी हद से पहले रुक जाते हैं, लेकिन साथ खूबसूरती इनकी ये है कि कभी अपने नज़रियात पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अपने नज़रियात पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करना और इंतहा को ना छूना, ये वो दो खूबियाँ हैं जो मुझे मज़हर अब्बास की तहरीरों में, इनकी गुफ्तगू में और इनकी शख्सियत में नज़र आती हैं। उर्दू सहाफ़त के 100 साल का सेशन हुआ, जिसमें वसीम बदामी ने निजामत की। शुरा ने सुहेल वड़ाइच, वजाहत मसूद, मजहर अब्बास, वसतुल्ला खान, अवेस तौहीद और आसमा शहराजी शामिल थी। इसके बाद उर्दू कॉन्फ्रेंस का सबसे मकबूल सेशन, जिसको ज़िया मोहिउद्दीन साहब ने उर्दू का शाहकार मिज़ा पढ़ा। लीजिए मौलवी साहिब का हुलिया सुनिए।
رنگ سانولا مگر سور روکھا، قد خاصا اونچا تھا مگر چوڑان نے لمبان کو دبا دیا تھا، دوہرا بدن تھا گدرا ہی نہیں بلکہ موٹاپے کی طرف قدرے مائل، فرماتے تھے کہ بچپن میں ورزش کا شوق تھا، ورزش چھوڑ دینے سے بدن مرموروں کا تھیلا ہو جاتا ہے، بس یہی کیفیت تھی، بھاری بدن کی وجہ سے چونکہ قد ٹھگنا معلوم ہونا لگتا تھا، اس کا تکملہ اونچی ترکی ٹوپی سے کر لیا جاتا تھا، کمر کا پھیر ضرورت سے زیادہ تھا، تو اس قدر بڑھ گئی تھی کہ گھر میں اظہار بند باندھنا قطعی ضرورت نہیں بلکہ تکلیف دہ سمجھا جاتا، ایک گرہ کو کافی خیال کر لیا جاتا تھا، گرمیوں میں تہمت باندھتے اس کے پلو اڑوسنے کی بجائے ادھر ادھر ڈال لیتے تھے، مگر اٹھتے وقت بہت احتیاط کرتے تھے، اول تو قطب بنے بیٹھے رہتے، اگر اٹھنا ہو تو پہلے اندازہ کر لیتے تھے کہ فی الحال اٹھنے کو ملتوی کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد عالمی مشاعرہ ہوا جس کی نظامت امرین حسیب امبر نے کی اور دنیا بھر کے شعراء نے اپنا کلام پڑھا۔ کانفرنس کے آخری روز یارکشائر ادبی فورم سیشن ہوا جس کی نظامت لندن سے آئی ہوئی غزل انصاری نے کی اور صدارت پیرزادہ قاسم نے کی۔ اس کے بعد بچوں کے ادب کا سیشن ہوا جس کی صدارت رضا علی عابدی نے کی۔ شرکا میں رؤف پاریکھ، نیّر رباب شامل تھیں۔ اس کے بعد کتابوں کی رونمائی کی گئی۔ شام 4 بجے سندھی ادب کے 100 سالہ کارکردگی کا سیشن ہوا جس کی نظامت ڈاکٹر ایوب شیخ نے کی۔ شرکا میں نور الہدیٰ شاہ، جامی چانڈیو اور طارق قریشی شامل تھے۔ سرزمین کے لوگوں کی حکومت تھی یہاں پہ، تو اس 500 سالہ جو ڈائنیسٹی کا زمانہ تھا اس زمانے میں بھی سندھی زبان یہاں کی دفتری زبان نہیں تھی، عربی اور فارسی زبان یہاں کی دفتری زبان تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 16ویں صدی سے جب سما ڈائنیسٹی کا زوال ہوتا ہے تو یہاں ایک 200 سالہ ایک بہت ہی سندھ کی تاریخ کا بھیانک دور آتا ہے جس میں سندھی زبان وہ ارغون ترخان اور مغل دور ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ارغون، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ارغون چنگیز خان کی اولاد میں سے ہیں، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ انہوں نے سندھ کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ کانفرنس کے چوتھے روز پاکستانی میڈیا کے ستارے ہمایوں سعید کے ساتھ سیشن ہوا جس کی نظامت ندیم بیگ اور صدر آرٹس کونسل احمد شاہ نے کی۔ جتنی بھی فلمیں بنائی پچھلے 6-7 سالوں میں آپ نے دیکھا ہو کہ گروتھ ہی آئی ہے اب تک، لیکن اس بار یہ جو کورونا ہے اس کی وجہ سے ظاہر سنیما بند ہے، آپ کو ضروری ہے کہ آپ کھانا کھائیں تو آپ ریسٹورینٹ چلے جاتے ہیں، آپ کو ضروری ہے کہ شاپنگ کرنی ہے تو شاپنگ کرنے چلے جاتے ہیں، لیکن سنیما جو کیونکہ آپ کو بڑی بڑی فلمیں آنا رک گئی ہیں تو سنیما کے اندر فلمیں بھی نہیں ہیں، ابھی ڈسٹریبیوٹرز نے ایگزیبیٹرز نے سنیماز کھولنا چاہے لیکن کھول نہیں سکے، اس کا ریزن یہی ہے کہ فلمیں ریلیز نہیں ہو رہی اور لوگ جو ہیں وہ سنیما میں ایک بند سنیما گھر میں فلم کو دیکھنا جو ہے بہت زیادہ رسکی ہے لوگوں کے لیے کورونا کی وجہ سے، تو یہ سنیماز ابھی مجھے لگتا ہے کہ جب تک یہ ویکسین نہیں آتی تب تک سنیماز نہیں کھلیں گے، لیکن جب بھی کھلیں گے انشاءاللہ تو فلم اسی طرح گرو کرے گی، اور کافی مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بہت سے لوگ، جبکہ سنیما کا ابھی لگتا ہے کہ سنیما سب کچھ ڈیجیٹل پہ چلے جائے گا اور سنیما نہیں رہے گا اور لوگ صرف گھر پہ بیٹھ کے اور اپنے فون پہ بیٹھ کے فلمیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد شام 6 بجے سہیل احمد کے ساتھ گفتگو کی گئی جس کی نظامت یاسر حسین نے کی۔ سہیل احمد نے کہا کہ منور سعید اور کبھی خان جیسے اساتذہ کی وجہ سے ہم نے سیکھا اور کراچی اب آتا رہوں گا۔ انہوں نے اپنی یادگار باتیں بتا کر خوب داد حاصل کی۔ میں عموماً آتا ہوں، میں تو ڈھونڈتا ہوں اس کراچی کو جو میں نے بچپن میں یہاں خالہ کے گھر آ کے دیکھا ہوا ہے۔ اچھا ہاں میری 2 خالائیں یہاں رہتی ہیں اور مجھے 76 کا کراچی یاد ہے۔ میں 76 میں یہاں کراچی میں خالہ کے گھر آ کے ہم لوگ چھٹیوں میں رہا کرتے تھے، اور کراچی کی سڑکیں بھی جاندار ہوتی تھی، یہاں کی اینٹیں بھی جاندار تھیں، بولتی تھی، یہاں کے درخت، یہاں کی ہر چیز جو ہے وہ جاندار دکھائی دیتی تھی، اس میں جان نظر آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ وہ دوبارہ وہ رونقیں ہمیں نظر آ رہی ہیں جس طرح کی ہم نے دیکھی ہوئی ہیں بچپن میں، تو آتے رہتے ہیں۔ بس یہ مجھے معاف کر دیجئے کہ میں یہاں آرٹس کونسل میں پہلی دفعہ آیا، بہت خوش نصیبی ہے ہماری، اور میں واقعی آ کے مجھے یہ محسوس ہوا
कि मैं क्यों इतनी लेट आया हूँ। यहाँ तो बहुत प्यारे लोग हैं, तो प्यार से भरा हुआ है आर्ट्स काउंसिल। और मैं ख़ास तौर पे अहमद शाह साहब को बड़ी मुबारक दूंगा और मैं सलाम पेश करूंगा उनको, चूँकि हमारे लाहौर में भी आर्ट्स काउंसिल है और मैं उसका बड़ी देर गवर्निंग बॉडी का, एग्जेक्टिव बॉडी का मेंबर रहा हूँ यासिर, मगर मैंने यहाँ आके आर्ट्स काउंसिल में जो गर्मजोशी देखी है, मैं बड़ा हैरान हूँ। ये क्रेडिट गोज़ टू अहमद शाह साहब। और ये यकीन मुझे इसलिए भी है कि अहमद शाह साहब मुझे एक दफ़ा यहाँ आके ड्रामा करने के लिए इनवाइट करने लाहौर मेरे घर पहुँच गए और मुझे तभी खान साहब ने बताया कि यार वो एक बड़ा मेहनती आदमी है और उससे ज़रूर मिलो। तो मैं जब उनसे मिला तो आधे घंटे के अंदर मुझे पता चल गया कि अहमद शाह साहब क्यों अहमद शाह साहब। मेरी नज़र अब पड़ी है। इसके बाद इख्तितामी सेशन हुआ जिसमें शुरा ने कामयाब कॉन्फ्रेंस का सहरा सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह के सर सजाया। अहमद शाह साहब ने सबका शुक्रिया अदा किया और मार्च में सकाफती कॉन्फ्रेंस का ऐलान भी किया। और वो लड़ाई ये है कि थोड़ा बहुत काम कर लिया, बहुत थोड़ा, ना इतना हसीना आपा जितना, ना नूरुल हुदा शाह जितना, ना सोहेल अहमद जितना, पता नहीं, थोड़ा सा कुछ इन लोगों की खिदमत की, कुछ थोड़ा सा सोचा कि ये खुद अपने लिए कुर्सियां तो नहीं बिछाएंगे, दरिया भी नहीं लगाएंगे, लाउड स्पीकर का भी इंतज़ाम नहीं करेंगे, तो इनकी आवाज़ दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, इनका काम पहुंचना चाहिए और लोगों की ज़िंदगी को बेहतर होना चाहिए। और इतने काम पर जो लोग कहते हैं कि हमारी सोसाइटी एक थैंकलेस सोसाइटी है, वो तो बहुत घटिया लोग हैं। मेरे जैसे बिल्कुल आम मामूली आदमी को इस मुल्क के और पूरी दुनिया के बड़े अदीब और दानिशवरों ने जो मेरे लिए कहा है, मैं समझता हूँ ये तो बहुत सखी और बहुत ही जनरस सोसाइटी है और मैं तो इस काबिल बिल्कुल था ही नहीं। और मेरी जो जंग है वो भी आप सुन लें। हजरत अली का कौल है कि ज़्यादा खुशामद तो आप में से कोई कर ही नहीं सकता, आप बादशाहों की नहीं करते तो मेरी क्या करेंगे, या तारीफ आपके नफ्स को मोटा करती रहती है। तो मेरी ज़्यादा जंग ये रहती है, मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह से रात तक जितना मोटापा हो, रात को उसको छील के काट के वापस वहीं पे आऊँ कि जो एक मामूली सा कीड़ा मकोड़ा में आदमी हूँ, ज़रा सा काम करता हूँ, इतनी शोहरत मिलती है, वापस रात को उस जगह पे पहुँचता हूँ, फिर आता हूँ अगले दिन वापस। सबसे आखिर में उर्दू टीवी, रेडियो और अदब के मिजाज के बड़े अदीब अनवर मकसूद ने अपना रिवायती मुकालमा पढ़ा। आर्ट काउंसिल कराची या अहमद शाह साहब की 13वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस। एक बात की खुशी है, ये नहीं कहना पड़ रहा है कि अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर लें, क्योंकि उन्हीं पर ये कॉन्फ्रेंस देखी जा रही है। शुरा को सिंधी कल्चर डे के हवाले से डॉक्टर अयूब शेख ने अजरक का तोहफा दिया और डॉक्टर हुमा मीर ने शाह लतीफ़ की शायरी से तकरीब का इख्तिताम किया। अफल अला अलीम आला आलम जो धनी, कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायम आहे कदीम, वाली वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम, सो सराहे सचो धनी चे हमद हकीम, करे पाण करीम जोड़म जोड़ जहान चे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।